हमारी बच्ची है नाटक का डॉक्टर को देगा सुनना है सुनता है। अल्लाह को बहुत बड़ा शुक्रिया। लेकिन स्टेज तो आज तक जिंदगी में फर्स्ट बार मेरी बच्ची की वजह से मैं खड़ी हूँ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. Who have supported me in this journey, and mainly my parents who have supported me throughout this journey without forcing me anything. Education is everything. If education is there, you can कुरान में पढ़ सकते हैं, कैसा दीनियात पूरा पढ़ सकते हैं. I understood my parents and I wanted to make them proud. My dear teachers, I am nothing without you all. You all are my everything. Thank you so much. ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲಿ? ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಮಾನವೀಯತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಸಾಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ತಾನು ಈ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಲಿತಂಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕಳೀಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬರ್ಬೋದು. DSF की तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह बच्चों को इनकरेज करते हैं? आज हमारा डॉक्टर मुजम्मल का लीडरशिप में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो. हमारा बच्चों का कैरियर गाइडेंस के में बाद में हमारा अभी जस्टिस संतोष हेगड़े अच्छा बात करें, अच्छा गाइडेंस दिए. ऐसा प्रोग्राम you have to do more programs in everywhere, every district, every place, because education is very important in community. Education is everything. If education is there, you can कुरान में पढ़ सकते हैं, कैसा दीनियात पूरा पढ़ सकते हैं. इसके लिए ऐसा प्रोग्राम, similar program you have to do more and more everywhere for every students, all students. By then only the students will understand, parents will understand, and they will come up in our society, and our society will do better, and they will come to know this India is very good country for us. So how to live in country with us, others, and everything will learn. So this program, I congratulate Dr. Muzammil sir, and let him do more program, such program. DSF ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ನಾನಿವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ DSF ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂತ್ಸನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ DSF ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ 5-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ DSF ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗೂ ಈ DSF ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬುನಿಯಾದ್ ಸುಲ್ಫಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ DSF ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ DSF ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು IAS ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು IAS ಮತ್ತು KS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು IAS ಮತ್ತು KSನಂತಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೋದು. ये तालीम और जो है सेहत के मामले में आप काफ़ी फिक्रमंद है, उसके नताइज भी जो है आज देखने मिले. काफ़ी ज़्यादा तलबा जो है इस इलाके से हाई नंबर्स में जो है तालीम हासिल करके कामयाब है. इस तरह जो आप इंकरेज कर रहे हैं, मुस्तक़बिल पे क्या जो है और आपके क्लाइंट्स हैं और किस तरह जो है कारवां चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. जो हमारा जो इदारा जो है DSF डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है. इसके अंदर कम से कम 49 मेंबर्स अभी हमारे ट्रस्टेस हैं. इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और क्या प्रोफेशनल्स हैं एंड होम मेकर्स हैं और थोड़े स्टूडेंट्स भी हैं. हमारा एक ही मकसद क्या है, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू गिव फिश टू ए मैन यू विल हैव इट एंड कम बैक आफ्टर 6 hours. इफ़ यू टीच हिम टू कैच द फिश ही विल डू रेगुलरली. मच्छी दे तो खाले को 5-6 घंटे बाद फिर आती, भूख लग रही भैया फिर मच्छी दे. और को हमें मच्छी देने वाले नहीं, हमें मच्छी पकड़ना सिखाने वाले. मच्छी पकड़ना सिखा ले तो क्या है, खुद दोनों क्या करते, पकड़ लेते, खा लेते. तो आज क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो अंधेरे हैं वो अंधेरे रोशनी में बदलना का तो हमारे अंदर इल्म आना है. एक दौर था हमारी कौम इल्म में नंबर 1 थी. आज हमें थोड़ी जो नेग्लिजेंस करे उसे हमें बहुत पीछे चले गए. तो उसके वास्ते इंशाल्लाह हमें 10 साल से मेहनत कर रही. तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीम जो है DSF टीम जो है, ऐसे बहुत सारी टीमें अगर पूरे इंडिया में मिले तो इंशाल्लाह क्या होता है, यहाँ की जो हमारी मजबूरी, जो गरीबी जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या कर रहे हैं, हर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मगर उनको थोड़ा स्किल्स आना है. वो स्किल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. उसके बाद में क्या है, हमें हमेशा बोलते रहते नॉलेज इज पावर बोलते रहते, मगर वो पावर हमें हासिल नहीं कर रहे. उसके वास्ते हमें यहाँ क्या है कि तो हमारे 3 एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं. नंबर 1 जो है नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी. नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी ये हमारा नंबर 1 फोकस है. नंबर 2 फोकस जो है हमारा हलाल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. तीसरा जो हमारा सोर्स है वो जो है आखिरत जनरेटिंग एक्टिविटी. नॉलेज, इनकम एंड आखिरत अगर जो हो गए तो हमें यहाँ भी और आखिरत में 2 जगह कामयाब होती. सर, इसके अलावा जो है जो तलबा को आपने इंकरेज किया, इसके अलावा ड्रॉप आउट्स भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हो जाते हैं. क्या उनके लिए कुछ स्किल प्रोग्राम्स इस तरह किया जा सकता है क्या? सर, ड्रॉप आउट्स होने का मेन रीज़न क्या हमें ऑब्जर्व करेंगे तो भाई के बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो रहे. सर माशाल्लाह हमारे बेटियां बहुत अच्छा पढ़ रही,
मर्द बच्चे ड्रॉप आउट हो रही, मर्द बच्चे को क्या हो रहा है तो जल्दी पैसे कमाना बोल के एसएलसी को खड़ा डाल रही, पीयूसी खड़ा डाल रही। नहीं तो घर के हालात ऐसे ही, बाप की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी का इमोशंस ब्लैकमेल हो रहा है, उसके वास्ते बच्चा क्या कर रहा है तो नहीं हमारा अम्मी और अब्बा को बहुत तकलीफ है, मैं जल्दी कमाना शुरू करना बोल के। एक मेजॉरिटी लोगों का ऐसा एक है। और थोड़े लोग ऐसे ही उनके माँ बाप पढ़ाने जा रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? बिकॉज सोहबत का असर, उन लोग जिसके साथ मिल रही उनकी सोच में क्या है लिमिटेशंस है, उसके वास्ते इन्हों भी लिमिट कर क्या कर रहे अपने आप को छोटा बना ले रही। तो अपने आप को बड़ा बनाना बोले तो इल्म हासिल करना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए मतलब जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए क्या जो है इकदाम हो सकते हैं, क्या राय हो सकती है उनके लिए? तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कल भी हमें गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में हमें कल भी जाकर टीचर्स को HM को तो हम बात करें, थोड़ा टीचर्स के अंदर भी वो डिज़ायर, वो चाहत, वो तड़प आना है। क्योंकि आज क्या है, गवर्नमेंट टीचर्स को बहुत अच्छा सैलरी है, गवर्नमेंट टीचर्स को बहुत अच्छा सैलरी है, मगर उसके बावजूद भी क्या है थोड़ा प्रॉब्लम्स भी है टीचर्स के। तो उसकी वजह से क्या है टीचर्स और SDM कमेटी जो है स्कूल डेवलपमेंट कमेटी और वहाँ के जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदार पूरे मिलकर करें तो इंशाल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ कर सकते हैं, मगर स्टार्ट करना कोई ना कोई। हमारे कौम में क्या बहुत लोग आइडिया देने वाले हैं, ऐसा करना वैसा करना, सब आइडिया देती, थियरी बहुत बोलती, भाई प्रैक्टिकल कोई ना कोई करना है। तो मैं भी बहुत आइडिया देता था 12 साल पहले, अभी क्या करें, नई आइडिया नहीं देना, हमें स्टार्ट करना बोलकर छोटे से स्टार्ट करें। आज हमारी पूरी टीम का साथ रहा, आज तक हमें लगभग अभी तक लास्ट 10 साल में 60,000 बच्चों को 60,000 प्लस स्टूडेंट्स को SLC PUC के करियर काउंसलिंग कर को ही, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बोल को ही, हाउ टू फेस एग्जाम बोल को ही, उसके बाद में बुला को उनको क्या है इनामात से नवाज को ही ये कर को। आज कितने बच्चों को, आज कितने तलबा को आज हमारे पास रजिस्टर करे थे, लगभग 980 बच्चे रजिस्टर करे थे। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा बच्चे आ गए आज हमारे, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे लोग बच्चे खुद वॉलेंट्री आ गए। तो बहुत खुशी हुई हमें, मतलब 2 घंटे इनामा दिए, 2 घंटे कैश अवार्ड्स बांटे। ये जो है बहुत अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन, अंदर से खुशी हो रही है माशाल्लाह। ऐसा स्टार्ट हुआ, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर हमारा है कोलार में है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट संडे हमारा है इंशाल्लाह अत्तीबेले में, उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे हमारा है होसकोटे में, बाद में चिकबल्लापुर में है, दोडबल्लापुर में है। तो हर संडे 2 महीने ब्लॉक हो गए हमारे। देखिए, ये जो डिवाइन सर्विस फॉर एवर फाउंडेशन से जो SLC PUC और ये जो बच्चों का जो भी आज टॉपर्स का 2022-23 बैच का फेलिसिटेशन हुआ है माशाअल्लाह, काड़ुगुड़ी, वाइटफील्ड, केआरपुरम, बरतूर और हुडी, ये पूरे इलाके के जो आज पूरे जो बच्चे जमे हैं माशाअल्लाह, यहाँ के बहुत बिजनेसमैन और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के आलिमा हजरत मदरसा के पूरे हमारे मौज मामा, इनसे एक मैसेज जा रहा है कि कम्युनिटी में एक अवेयरनेस आया है। आई हैव सीन अराउंड 3,000 to 5,000 टॉपर्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड हु आर गेटिंग इनटू वेरियस कोर्सेस एंड माशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये और बढ़ना है। कम्युनिटी का जो अगर अपलिफ्टमेंट होना है तो एजुकेशन में ऐसे काम करने का बहुत ज़रूरी है। तो ईदगाह में जो मैदान में जो कर रहे हैं ना, ये मिसाल है। सो यू डेफिनेटली इट्स लाइक ए ट्रेंड सेटिंग प्रोग्राम, दिस इज़ माय ओपिनियन। एंड आने वाले दिनों में माशाल्लाह और ऐसे प्रोग्राम है तो कौम का और आगे बढ़ने का और चांसेस, और कौम को और रोशनी में डाल के बच्चों की तरक्की करने का एक जज्बा पैदा हो। सी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड, जो भी हो यहाँ बच्चों को टॉपर्स को बुला के, मैं ज़्यादातर हिंदू लोगों को देखा, एक जैन बच्चे को टॉपर जो था 98.5% बुला के यहाँ बच्चे को 5,000 कैश अवार्ड दिया गया, सबको किताबां बांटे गए, तो मोमेंटोस दिए, अवार्ड्स दिए, मेडल्स दिए, प्राइजेस दिए। तो इनसे बच्चों को क्या है एनकरेजमेंट और होता है। तो आने वाले दिनों में एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड, दिस शुड हैपन एट नेशनल लेवल एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट वी शुड लोकेट द टॉपर्स लाइक दिस एंड फेलिसिटेट देम सो दैट द ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी विल टेक प्लेस। कई मुझसे अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। नहीं, देखिए व्हाट्सअप जो है आज डिजिटल मीडिया जो है, नॉलेज इज फ्लोइंग थ्रू आवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देयर में बी प्रो, देयर में बी कॉज एंड देयर में बी रिट्रोस्पेक्टिव, देयर में बी मेरिट्स, देयर में बी ड्रीम मेरिट्स। तो ये जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को उनके बारे में अवेयरनेस देना है, और किसी को भी हम फॉरवर्ड करने के पहले वी शुड अंडरस्टैंड द वेरासिटी ऑफ द कंटेंट। तो ये सोशल मीडिया में होना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। शुक्रिया।